سیاحوں کی بس جی ٹی روڈ پر چلی جا رہی تھی اور ایک سانولا سا نوجوان گائیڈ جس کے سر کا سارا تیل ماتھے پہ پھیلتا ہوا بھووں تک آ چکا تھا، اپنی ہندوستانی انگریزی میں اس تاریخی سڑک کا حال کہہ رہا تھا۔ باتوں باتوں میں اس نے ایک عجب بات کہی اور شاید میرے سوا کسی نے اس بات پہ دھیان نہ دیا۔ اس نے کہا کہ جی ٹی روڈ اور دریائے گنگا دونوں کی لمبائی برابر ہے۔ یہ سنتے ہی ذہن میں چراغ سے جلنے لگے۔ میں سوچنے لگا کہ دونوں میں اور بھی تو بہت کچھ مشترک ہے، دونوں قدیم ہیں، دونوں وقت کے ساتھ اپنے راستے بدلتی رہی ہیں، دونوں کا حال ان رگوں جیسا ہے جن میں زندگی دوڑتی ہے، اور میرے نزدیک دونوں مقدس ہیں۔ مقدس کون ہوتا ہے؟ وہی تو جو زندگی دے، جو جینے کے اسباب دے، جو ہمارے سارے وجود کو امنگوں، جولانیوں اور ولولوں سے بھر دے، وہ چاہے دریا ہو، چاہے سڑک اور چاہے ماں۔ میں جو اس شام کلکتے سے ذرا پرے سرکار انگلیشیا کے ہاتھوں لگائے ہوئے بوٹینیکل گارڈن میں پہنچا اور ریسٹورنٹ سے چائے لے کر دریا کے کنارے جا بیٹھا تو عجب حال ہوا۔ 1500 میل کی یہ راہ جو میں نے مر مر کر مہینے بھر میں طے کی تھی، میرے دل اور میرے دماغ نے اٹھ کر ایک جست بھری اور لمحہ بھر میں یہاں سے وہاں تک دوڑ گئے۔ تپتے میدانوں کی یہ قیامت کی مسافت میری نظر اور میری فکر نے پلک جھپکتے طے کر لی، اور سارے منظر، ساری منزلیں ایک بار یوں نظر آنے لگیں جیسے میں فضا میں بلند ہو کر تا حد نگاہ دیکھنے لگا ہوں، اور راہ کے سارے تجربے اور سارے احساس دور افق تک یوں دکھائی دینے لگے جیسے سڑک کے کنارے کھڑے ہوئے قطار در قطار سینکڑوں ہزاروں کوس مینار۔ وہ سب مجھے یاد آنے لگا، وہ شہر، وہ گلیاں، بازار اور وہ لوگ، وہ اداسیاں، وہ مایوسیاں، وہ آرزوئیں، وہ تمنائیں، وہ حیرتیں، وہ حسرتیں، ان کے وہ دکھ، ان کے وہ سکھ، وہ سارے کے سارے یوں لگے جیسے جرنیلی سڑک ایک ڈور ہو اور وہ اس میں پروئے گئے ہوں۔ کوئی مجھ سے پوچھے کہ احساس اور شعور کے اس سارے تجربے کو ایک جملے میں کیوں کر کہو گے، تو میں یوں کہوں گا کہ پشاور سے کلکتے تک لہجے مختلف، زبانیں جدا، مگر بات ایک ہی تھی۔ پرانی نسل کو گزرے ہوئے کل کی یاد ستا رہی تھی اور نئی نسل کو آنے والے کل کی خبر نہ تھی۔ وقت نے زندگی کے انداز کو بالکل بدل ڈالا تھا۔ پاکستان میں معاشیات سے لے کر منشیات تک مختلف وسیلوں سے دولت چلی آئی تھی۔ ہندوستان غلے کے معاملے میں اتنا خود کفیل ہو گیا تھا کہ پانی پت میں ٹرک ڈرائیوروں نے مجھے بتایا کہ اب غلے کے گوداموں کے اندر جگہ نہیں رہی، ہم تمام بوریاں باہر کھلے آسمان کے نیچے ڈالاتے ہیں۔ مگر اس ظاہری خوشحالی سے زندگی میں کیا داخل ہوا ہے اور زندگی سے کیا نکل گیا ہے، اس کا میزانیہ بناتا ہوں تو جی ڈرتا ہے کہ کہیں میں یاس کا مارا ہوا تو نہیں۔ زندگی سے جو نکل گیا وہ سکون ہے، اور زندگی میں جو داخل ہوا وہ تشدد ہے، اضطراب ہے اور بے یقینی ہے۔ تشدد کا یہ حال کہ کلاشن کوف رائفلیں 100 روپے روز کرائے پہ مل رہی ہیں، لوگ اپنے گھروں میں بم بنا رہے ہیں، گھر کی چار دیواری محفوظ ہے، نہ باہر کی کھلی فضا۔ جو اندر بیٹھے ہیں مسلح ڈاکو اندر آ کر انہیں لوٹ رہے ہیں، جو باہر نکلے ہیں وہ باہر لوٹے جا رہے ہیں۔ لوگ اپنی بات دلیل سے نہیں منوا رہے ہیں بلکہ قوت کے بل پر ذلیل کر کے منوا رہے ہیں۔ ہر فریق کہتا ہے بس میں حق پہ ہوں، چنانچہ وہ مرنے مارنے پہ نہیں بلکہ صرف مارنے پر تلا ہوا ہے۔ اب فیصلہ پنچایتوں اور چوپالوں میں نہیں ہوتا، اب جو طاقتور ہے وہ چاہتا ہے کہ شام کے جھگڑے کا رات کے اندھیرے ہی میں تصفیہ ہو رہے۔ اضطراب کا یہ حال ہے کہ جیسے صبر کا یارہ جاتا رہا، جیسے اچھے دنوں کے انتظار کی سکت جاتی رہی۔ انسان کا جی تو ہمیشہ چاہتا رہا کہ یوں ہو اور یوں ہو، لیکن آج کا انسان چاہتا ہے کہ یوں ہو اور ابھی ہو، ایسا ہو اور رات بھر میں ہو جائے، اگلی صبح نمودار ہو تو گھر میں دولت کے انبار لگے ہوں، رات کے تیسرے پہر سے پہلے پہلے کار بھی آ جائے، ویڈیو بھی اور ایئر کنڈیشننگ بھی، جو بھی ہونا ہے ابھی ہو جائے، ابھی اسی وقت اور فوراً۔ ظاہر ہے کہ خواہشوں کی رفتار اور ہوتی ہے، فطرت کی چال اور،
चुनाचे आज की ज़िंदगी से फितरत निकल गई है और उसकी जगह रिश्वत आ गई है। किसी ने कहा, देखिए कैसा ज़माना आ गया है, स्कूल का टीचर और कॉलेज का लेक्चरर तक रिश्वत लेने लगा है। एक ड्राइवर ने कहा कि मैं 14 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, आज तक किसी पुलिस वाले को मैंने अपना लाइसेंस नहीं दिखाया। 20-30 रुपए देकर ज़िंदगी आराम से गुजर जाए तो लाइसेंस दिखाने की खकेड़ में कोई क्यों पड़े। आप नाजायज़ काम करा रहे हों तो रिश्वत, आप हक़ पर हों और जायज़ काम करा रहे हों तो रिश्वत। एक साहब दिल के मरीज़ थे और किसी दस्तावेज़ पर बड़े साहब के दस्तखत कराना चाहते थे। साहब का दफ्तर 4थी मंजिल पे था और इमारत की लिफ्ट बेकार पड़ी थी। दिल के मरीज़ थे, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते थे। साहब को दस्तखत करने नीचे आना पड़ा। वो आए मगर रिश्वत लेकर। जीटी रोड पर एक सरकारी अफसर कारें रोक रोक कर उनकी तलाशियां ले रहे थे और तलाशियों से ज़्यादा रिश्वत ले रहे थे। किसी खर दिमाग ने उन अफसर साहब से उनका शनाख्तनामा तलब किया। पता चला कि मामूली से मुलाजिम थे जिनका काम ये देखना था कि कार में लगे हुए रेडियो का लाइसेंस बनवा लिया गया है कि नहीं। दास्तानों के ख़ात्मे पर अब ये नहीं कहा जाता कि जैसे खुदा ने उनके दिन फेरे सबके दिन फेरे। अब ये कहा जाता है कि दिन फेरे और जल्दी से रातों रात फेरे। ये इस्तराब क्यों है और ये बेचैनी क्यों है? जवाब इसका सीधा साधा है, कल की किसी को खबर नहीं। इसलिए जहन अंदर से कचोके ले रहा है कि जो कुछ करना है अभी कर लो, कल खुदा जाने क्या हो। वो जो मंसूबे बना करते थे, वो जो मशवरे हुआ करते थे आपस में, वो सब ख़त्म हुए। अब हर रोज़ के मामले उसी रोज़ निपटाने की हिकमत इख्तियार कर ली गई है और इस हिकमत में खुदगर्जी भी मिल गई है। सोचने का अंदाज कुछ यूँ हो गया है कि हमें मिल जाए चाहे दूसरे का हक़ मारा जाए। नफ्सा नफसी ज़िंदगी में यूँ चली आई है कि अगर कोई खुश है तो दूसरे को ये गम खाया जा रहा है कि वो खुश क्यों है। अगर कोई तरक्की कर रहा है तो दूसरे को ये फ़िक्र है कि उसे घसीट कर किस तरह नीचे गिरा लिया जाए, और ये भी नहीं कि खुद उसकी जगह बुलंदी की तरफ चलें, बस ये कि वो ना चले, वो किसी तरह नीचे आ रहे। अब किसी को कोई अच्छा नहीं लगता। आप किसी महफिल में ज़रा किसी के हक़ में एक कलमा खैर कहकर तो देखिए, कितनी ही पेशानियों पे बल आ जाएंगे, कितनी ही तेवरियाँ चढ़ जाएंगी और भवें तन जाएंगी। मैं सहसराम में 2 रोज़ क़याम करने के बाद आगे जाने वाली ट्रेन में बैठा। रेलवे के एक अफसर भी मेरे पास आ बैठे, वो भी सहसराम के थे। मुझसे पूछने लगे कि आपने अपने रेडियो प्रोग्राम के लिए सहसराम में किस किस को इंटरव्यू किया। मैंने खुश होकर शहर के एक साहब का नाम बताया कि बहुत पढ़े लिखे हैं। कहने लगे, वो तो रोहतासगढ़ के डाकुओं के आदमी हैं, पढ़े दर्जे के चोर हैं। फिर मैंने शहर के एक और बुज़ुर्ग का नाम लिया कि बहुत अच्छे आदमी हैं। कहने लगे, वो सख्त बेईमान हैं, न मालूम किसको धोखा देकर उसका मकान नीलाम करवाया और फरेब से खुद खरीद लिया। हैरत है, आपने ऐसे ऐसे लोगों को इंटरव्यू किया। BBC जैसे इदारे पे ये ज़ेब नहीं देता। कल क्या होगा, इस सवाल के दरवाजे से गुज़र कर दिल के नहाखाने में एक और चीज़ आ रही है, और वो है मज़हब से ऐसी वाबस्तगी जिसमें शिद्दत है और जिसमें रवादारी नहीं। यहाँ से वहाँ तक मज़हब की एक नई लहर उठी है। बेशुमार मंदिर बन रहे हैं, मस्जिदें एयर कंडीशन करके वॉल टू वॉल कालीन डाले जा रहे हैं। बिहार में एक पहाड़ी पर नीचे मंदिर की इमारत है, ज़रा ऊपर मस्जिद की इमारत। 50 साल तक किसी को ये ख्याल न गुज़रा जो अब अचानक गुज़रा कि मस्जिद ऊंची है और मंदिर नीचा। चुनाचे मंदिर की इमारत ऊंची की गई और इतनी ऊंची की गई कि वो मस्जिद से ऊंचा हो गया। पंजाब में मस्जिदों पर लिख दिया गया है कि ये फ़लाँ मसलक की मस्जिद है, ये फ़लाँ मसलक से ताल्लुक़ रखने वालों की मस्जिद है। एक जगह ये भी लिखा था कि दूसरे मसलक वाले हजरात अंदर ना आएँ। खाना खुदा में भी बंटवारा हो गया। बुज़ुर्गों के मज़ारों पर खूब रौनक है। ज़िंदगी की जागती हुई दास्तानों से मायूस होकर लोग कब के सोए हुओं के आस्तानों पे जा पहुँचे हैं। कहीं रात रात भर कव्वाली हो रही है और गैर मुस्लिमों के महल्ले में ऊंचाई पर लाउड स्पीकर लगा दिए गए हैं कि कहीं कोई चैन से न सोने पाए।
कहीं रात रात भर भजन और कीर्तन हो रहे हैं और सारा शहर करवटें बदल बदल कर रातें काट रहा है। वक्त तरक्की कर रहा है तो बहुत सी नई सूरतें देखने में आ रही हैं। पूरी पूरी आबादियां नकले मकानी कर रही हैं। कुछ को सियासत ने मजबूर किया है और कुछ को मईशत ने। लोग एक नगर से उठते हैं, दूसरी बस्ती में जाकर पड़ रहते हैं। इस पर कशाकश शुरू हो गई है। ये हमारी ज़मीन थी, तुम इस पे क्यों आए? ये हमारा इलाका था, यहाँ तुम्हारा क्या काम? एक बहुत बड़े शहर को उसके रहमो करम पे छोड़ दिया गया है, शायद इसलिए कि उसमें दूसरे खित्तों के लोग आ बसे हैं। उसकी जगह एक नया शहर बसाया जा रहा है जिसमें बाहर वालों को आबाद होने की इजाज़त नहीं होगी। यूं अब नई नई दीवारें उठाई जा रही हैं जिनमें से बाहर जाने का दरवाज़ा हो या ना हो, अंदर आने का अब कोई रोज़न तक नहीं। 1500 मील की सड़क पर एक दास्तान तालीम की भी है। ज़्यादातर को नसीब नहीं। जिनको है उनके बारे में ये तय नहीं कि 7 मज़मून पढ़ाए जाएं या 9 या 11, यहाँ की ज़बान में पढ़ाए जाएं या वहाँ की ज़बान में। 40 साल से इन बुनियादी सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं आज तक, लेकिन नहीं मिले। कहीं हिंदी हिंदी का नारा है, कहीं उर्दू उर्दू का, मगर बच्चे के माँ बाप को ना हिंदी की फ़िक्र है ना उर्दू की परवाह। उनका बस एक ही ख्वाब है कि बच्चा किसी तरह अंग्रेज़ी पढ़ जाए। ज़िंदगी के सारे इंटरव्यू, सारे टेस्ट और सारी अच्छी मुलाजमतें इसी एक अंग्रेज़ी के दम से हैं। जिसकी अंग्रेज़ी कमज़ोर रह गई उसके मुकद्दर में फाके लिखे हैं। पाकिस्तान में एक घराना ऐसा देखा जिसमें नौकर के सिवा सब सुबह से शाम तक अंग्रेज़ी बोल रहे थे। गुफ्तगू अंग्रेज़ी में, ख़त व किताबत अंग्रेज़ी में, टेलीफोन पर बातचीत अंग्रेज़ी में, यहाँ तक कि ख्वाब अंग्रेज़ी में। हिंदुस्तान में एक मियाँ बीवी को देखा जो आपस में तो हिंदी बोल रहे थे मगर अपने शरीर बेटे को अंग्रेज़ी में डांट रहे थे। दिल्ली के घराने में बच्चों की तालीम का मौजू ज़ेर बहस था। इंग्लिश मीडियम के जितने भी स्कूल हैं उन सब में बच्चे इस पूरी तरह भर चुके थे कि अब जगह नहीं रही थी और नए बच्चों के वालिदैन से मुख्तलिफ नामों और बहानों से बड़े बड़े अतिये और चंदे मांगे जा रहे थे। साहब, एक नया क्लासरूम बनवा दीजिए, हम आपके बच्चे को दाखिल कर लेंगे। दूसरी तरफ गरीबों के थके हुए जहन और चूर चूर बदन हार गए थे। अब क्या होगा उन्हें खबर न थी। अब कौन आएगा उनकी मदद को? वो खुशगुमानियों में मुब्तला थे। 2 पूरी नस्लों की बात कानपुर के 11-12 बरस के कायम रज़ा ने और उसकी बूढ़ी नानी ने कह डाली थी। बूढ़ी नानी सादात की पुरानी कब्रों की देखभाल करती हैं। उन्हें महीने के सिर्फ 60 रुपए मिलते हैं। चुनाचे नन्ना कायम रज़ा हर चंद के ज़मीन के ऊपर है, मगर हाल उनसे बेहतर नहीं जिनकी मिट्टी की ढेरियों की निगरानी उसकी नानी करती हैं। जरनेली सड़क की ये पूरी गुफ्तगू उन्हीं की बातों पर ख़त्म हो रही है। मैंने कायम रज़ा से पूछा, तुम स्कूल जाते हो? जी नहीं। फिर क्या करते हो? काम सीखते। क्या काम सीखते हो? स्कूटर का। यानी मरम्मत करते हो स्कूटर जी। की? कौन सिखाता है तुम्हें काम? फजल अब्बा। मिस्त्री हैं वो? जी। अच्छा, तो तुम दिन में कितने घंटे उनके पास काम करते हो? 9 बजे आते हैं, 4 बजे चले आते हैं। अच्छा, सारे दिन काम करते हो? जी। कितना काम सीख लिया तुमने? इंजन सर्विसिंग खोल लेते हो इंजन, सफाई वफाई कर लेते हो? जी। अच्छा, तुम्हें क्या पैसे मिलते हैं काम के? अभी देते नहीं, खुद कब देना शुरू करेंगे? अच्छा, तो और भी लड़के काम करते हैं वहाँ जी। तुम्हारी उम्र के? बहुत करते बड़े। उनको पैसे देता है वो या नहीं? जी देते हैं जिनको। जो सीख गए उनको कितने पैसे देते हैं? जितने दें। नहीं, 5 रुपए 10 रुपए कितने देते हैं महीने के? एक को 30 रुपए देते हैं। 30 रुपए लड़के को? वो जी। काम सीख गया है पूरा। तुम्हें कब मिलना शुरू होंगे पैसे? जब वो कितने पैसे देंगे? जितने दें। कब देंगे? जब दें। ये बच्चा जो नौजवान होकर 21वीं सदी में दाखिल होगा, इस बच्चे को बिल्कुल नहीं मालूम कि इसका मुस्तकबिल क्या होगा। आगे चलकर क्या होगा, मैंने कायम रज़ा की नानी से पूछा। मौला आएंगे, मौला इंतज़ार में बेटा, हम लोग खुद इंतज़ार में, किस वक्त आए मौला। ऐसे जड़ी को पकड़ लाना, थोड़ा हाथ में लगड़ देना, 3 मरतबा घुमाना, कहना चुर्राट घुचड़ू
बजाओ लड़के ताली, पंख लगाया, रुपया पैसा बंद कर